Hello, everybody. I hope you all are fine there at your places. And it's a new session, English session. I am here again with you. As you can see on the screen, I have your literature book with me, and I have opened page number 19. We have done up to this C exercise in the last session, and in the same session I have sent you a PDF file of the question answers. I thought it would be easier for you to note down the answers. We have already discussed the answer in the session. Answers हम already discuss कर चुके थे. I hope आपको कोई problem नहीं आई होगी. Answers are very I tried to make them as easy as I could, because now it would be different from class 2 में थोड़ा level आपका, like if you have answers, so it would have been of 1 or 2 sentences, so we have to build up more and more ability and capacity to write further, to elaborate things further. So this is a new session in which we are going to do this portion of your literature book, exercise D, E and F. These exercises I am including because I hope you all are having books now, and we should also do some random exercise which are good, like which are useful for us, and which makes us to critically think about what we have read, and we should be more to go into the deep of the content and find out the things, their meaning, and how to use them in practical reality or in day-to-day life. So these exercises will help us. First, as you can see, is the word wise exercise. Find words from the story that mean the opposite of these words. The words are given to us and we have to find out their opposite that are present in the story. The story is the Little Red Kite. तो हम उस स्टोरी में से इनके opposites means having the reverse meaning. Opposite meaning अगर मैं कहूँगी तो आप कहोगे opposite के meaning में मैम ने opposite बोला. Opposite मतलब उसका बिल्कुल दूसरी तरफ. Like if it is right तो उसका different बिल्कुल opposite क्या होगा? Left. If it is right, it can be also wrong. It depends on the sense we are talking. So if it is like up तो उसका opposite होगा down. Opposite मतलब बिल्कुल दूसरी तरफ. जैसे कॉइन्स की दो साइड होते हैं ना, तो ऑपोजिट मतलब बिल्कुल उल्टा. जैसे आप करते हैं ना हिंदी में, इट इज कॉल्ड विपरीत शब्द, वैसे दीज ऑपोजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लाइक एंटोनिम्स. ठीक है, उनको हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं, और जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड सिनोनिम्स. सो अभी हमें सिर्फ ऑपोजिट्स पे फोकस करना है. एंड वी हैव गिवन वन, राइज. राइज मतलब उठना किसी चीज़ से या किसी हॉरिजन से ऊपर उठना, एंड उठना, और फिर उसका ऑपोजिट क्या है? गिरना, फॉल. Okay, this is in the story. Now blunt means having a very curved or smooth. It can be not like blunt का मतलब है, I'll explain with you an example. For example, if I say I have a blunt knife and I have a sharp knife. So blunt और sharp, these are opposites. अब आप शार्प का मतलब अगर आप समझ चुके हैं, शार्प मतलब तीखा, जिसकी एजेस थोड़ी तीखी हों, पूरी पॉलिश्ड हों, विच कैन कट समथिंग और विच कैन गेट पियर्स इनटू समथिंग. किसी चीज़ को पियर्स, यानी कि पियर्सिंग होता है किसी चीज़ में भेदना, छेद कर देना. सो ब्लंट का मैं आपको समझाना चाहती हूँ. ब्लंट मतलब जिसका सरफेस थोड़ा इतना तीखा नहीं है, शार्प नहीं है, और थोड़ा कर्व में है. ठीक है. सो ब्लंट का ऑपोजिट आई टोल्ड यू, दैट इज शार्प. और शार्प हमारे पास इस चैप्टर में भी है, बिकॉज द काइट वॉज अफ्रेड ऑफ द शार्प वॉट, लाइक शार्प थॉर्न्स और शार्प ब्रांचेस. आई जस्ट लेट यू नो कि शार्प कहाँ है. इट्स देयर. हाँ. सो आई एम सो अफ्रेड आई माइट फॉल ऑन अ शार्प ब्रांच. सो शार्प वर्ड इज हियर यूज एंड वी हैव रिटन इट हियर ऑल्सो. नाउ द मीनिंग ऑफ लो मीन्स एट अ लोअर लेवल, नीचे. सो लो का ऑपोजिट हम यूज़ करते हैं. इफ़ आई से, आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए. इफ़ आई से द टेम्परेचर इज़ वेरी लो हेयर, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है. लो का हम ऐसे भी कहते हैं नीचे, या फिर कम की सेंस में भी यूज़ करते हैं, कम है.
तो अगर हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सो वी शुड नॉट से इट लाइक द टेम्परेचर इज़ मोर हेयर. इट इज़ ऑल्सो ओके, कंपेरिजन में काम आता है, लेकिन वी जनरली से द टेम्परेचर इज़ रियली हाई हेयर. सो लो का ऑपोजिट है हाई. एंड इफ़ वी सर्च फॉर दिस वर्ड, तो हमें ये भी देखना है ना कि वो हमारे पास इस चैप्टर में भी होना चाहिए. एंड दिस इज हियर. यस, द क्लाउड्स वर हाई इन द ब्लू स्काई. हाई मतलब ऊंचाई पर. सो दिस इज हियर, आई एम राइटिंग इट हाई. ओके. पुल, खींचना. अब उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसको धक्का देना. इट इज पुश. ये हम जनरली हम जब जाते हैं, व्हेन वी गो टू सम शोरूम्स और सम लाइक व्हेनेवर वी गो टू मार्केट, इट इज़ रिटन ऑन दैट द एंट्रेंस डोर्स, और ठीक है ना, पुल, पुश. सो दीज वर्ड्स आर ऑपोजिट्स. फार मतलब दूर. अब दूर का ऑपोजिट होगा पास. सो इट इज़ हियर. यस, नियर. पुश इज हियर, बिग पुश. एंड फार का ऑपोजिट नियर, पास में. सो राइट इट देयर, नियर. बिलो, नीचे. एंड इट्स ऑपोजिट वुड बी अबव, एक सरफेस के ऊपर. ओके. क्रूअल. क्रूअल मैंने आपको चैप्टर में पढ़ते हुए समझाया था. क्रूअल मीन्स नॉट लाइक हु रियली नॉट बिहेव्स वेरी वेल. बहुत ही मीन और सेल्फिश और निर्दयी बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं क्रूअल, है ना. अब क्रूअल का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? जो बहुत ही दयालु हो, सबका ध्यान रखे, सबको प्यार करे. एंड इट इज़ देयर, वेलकम लिटल वन सेड अ काइंड ब्लू काइट. ओके. सो it's a opposite of cruel, that is kind. Like the king was very cruel but the queen was very kind. Little, chota. And if we talk about the opposite of little, giant, huge, big, कुछ भी हो सकता है. but in this story we have used huge monster, so we are writing little, huge. और we can also use like big also. it doesn't matter. अगर आपको big भी मिल जाए तो आप big भी लिख सकते हैं, but I have used huge here. ठीक है. so all these are opposites. I read it again for you. Rise, fall, blunt, sharp, low, high, pull, push, far, near, below, above, cruel, kind, little, huge. So all these words we have taken from the story. Now let us move on further with E exercise. What can you do in a playground or a park? Match the columns. आप एक पार्क या प्लेग्राउंड में क्या कर सकते हैं? I'll read the left side first and the right side then, and you have to tell me the matching correct matches. Sit, play, ride, run. Sit बैठ सकते हैं, play खेल सकते हैं, ride कुछ ride कर सकते हैं, riding on some bicycle or like the kids scooter. Run भाग सकते हैं. Now टेनिस, अ बाइसिकल, अराउंड, अंडर अ ट्री. अब हमें ये जो सारी वर्ब हैं, इफ़ यू सी केयरफुली, अगर आप इनको समझें, दीज ऑल आर एक्शन वर्ड्स. हम क्या क्या कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड हमें वो चीज़ें कहाँ कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं, वो ऑप्शंस यहाँ पे हैं. सो लेट्स ट्राई टू मैच इट. सिट, कहाँ बैठ सकते हैं हम? टेनिस, नो. अ बाइसिकल, सिट अ बाइसिकल, इट डजेंट लाइक बैठ सकते हैं बाइसिकल पे, बट उसके लिए कुछ मिसिंग है, सो इट डजेंट मैच गुड. सिट अ बाइसिकल, नो. सिट अराउंड, sit under a tree. So we have to choose the best one. Okay, sit under a tree. So this is the number 1. Then play tennis, play a bicycle, play around. Play around is also good, like, but सबसे best यहाँ पर लग रहा है if you take the reference of the pictures here, तो भी आप समझ सकते हैं, because you have given 2 options. आप तो यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, बस plus you have this picture reference. So we are playing tennis here, she is playing, sorry. So play tennis. Ride, yes, you can ride a bicycle. 3. and run around, और चारों तरफ या आसपास आप भाग भी सकते हैं. Okay, so we are done with exercise E. Let us focus on exercise F. This is very interesting and you love to do it. Unscramble the jumbled words and write the correct words on the blank. हमें ये वर्ड्स बेसिकली स्टोरी में से ही ध्यान में लाने हैं, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द स्टोरी वी हैव रेड. स्टोरी आई एम जस्ट लेसन नंबर 2, द लिटिल रेड काइट. The content, so we have to make बहुत ही मिलते जुलते words होंगे, so you just have to just a bit more concentration you need. SSGRA, so what we can make, like think about it. RASSG, ras, no. So if we just go around,
थ्रू द चैप्टर आपको चैप्टर के बारे में सोचते ही उसका कंटेंट जैसे आपने पढ़ा है अच्छे से, तो यू विल कम अक्रॉस कि ऐसा इस लेटर्स के साथ हम क्या वर्ड्स बना सकते हैं. सो द वर्ड इज, आई विल बी राइटिंग इन कैपिटल्स सो इट विल बी मोर क्लियर. GRASS, ग्रास. सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप रफ पेज पे आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के भी देख सकते हैं, ठीक है ना. लाइक फॉर यू आई जस्ट डू इट. इट इज़ SHUB, शब. Shub doesn't have a meaning. If I say SHUSB, hush, no. If I say BUSH, yes, it is correct. That is bush. So आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा. You have to take combinations. मतलब आपको हर एक लेटर को अपनी प्लेस चेंज करके देखना पड़ेगा. एंड somehow you will. और बेसिकली ये क्या है, कुछ भी रैंडम नहीं दिया. दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द कंटेंट ओनली. तो आपको और ज़्यादा 50% तो आपका काम हो ही गया है. सो TEKI, टेकी, नो. If I say KETI, Ketty, no. So Ketty also doesn't seem to be a meaningful word. Then we take another chance and we write KITE, kite. So it suits here. Kite is the word. PLEPUR. So if you go through this also, आप half भी देखेंगे तो purple. We already got it. So that is purple. और सबसे इजी पता है क्यों रहेगा, बिकॉज यू हैव रेड दीज वर्ड्स. आप ये लेटर्स और ये इनका कॉम्बिनेशन देख चुके हो, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू 50% तो हमें वो जो रिटेंशन है वर्ड्स की वही हेल्प कर देगी. सो LUERC. सो इफ़ यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, CR ऐसा कुछ वर्ड था हमने अभी पढ़ा है. इट इज़ देयर हियर. सो आपको आसपास में ही वो वर्ड्स मिल जाएंगे. एंड दिस इज क्रूअल. एंड देन द लास्ट वन, KYS नहीं बन सकता, YKS नहीं हो सकता, SKY, yes it is sky. These are your answers here. Okay, so we have done with this exercise and it is page number 19. I hope you all are doing with me. Now leaving all those, if you have questions कि हम ये सब कब करेंगे, if you see these are like extended grammar topics when we do it in the grammar book. जब हम ये कर लेंगे plurals and whatever sentences, I'll be giving assignments related to in the literature notebook. literature notebook में आपको कुछ grammar portions हर जगह मिलेंगे, as you can see on page number 20. So when we'll discuss this in the grammar portion, तब आपको ये एक assignment की तरह दिया जाएगा. So don't worry about this. Now focus on this green one, write well. आज जो मैं आपको बेसिकली कराना चाहती थी वो ये है, इम्पॉर्टेंट इज एक्सरसाइज J. लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 15. राइट अ पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द सीन. यू कुड बिगिन लाइक दिस. आपको लाइक इफ़ यू गो टू दिस वर्ड पैराग्राफ, तो यू डोंट हैव टू राइट इट लाइक 10 to 12 सेंटेंसेस का पैराग्राफ. एक छोटा सा पैराग्राफ हम लिखेंगे टू डिस्क्राइब द सीन ऑन पेज नंबर 15. And you can start like this, 5 children from different countries are, and so on. आप अपने sentences add कर सकते हैं. Now if they have given the page number, so let us move on to page number 15. So I'll just go to page number 15. Here, this is page number 15 and this is the introduction of Little Red Kite. Kites were first invented in China. Today people all over the world enjoy flying kites. Look at this picture. Which kite do you like the best? Discuss in class. This we have like जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, I have given you some introduction based on this कि अलग अलग शेप्स की kites हैं. Some people like big, some people like small, some people like with a tail. So on the basis of the scene, we have to write a small paragraph. I'll be giving you the paragraph. मैं 5 to 6 sentences आपको देने वाली हूँ. This is जस्ट ऑन यू, इट्स योर चॉइस. आप उन सेंटेंसेस को अमेंड करना चाहें, कुछ चेंजेस करना चाहें, यू कैन वेरी वेल डू इट. सो लेट अस फोकस ऑन दिस पैराग्राफ. और आपको करना क्या है now, this is your session and I just forgot to tell you the password today. It is stir. This is from the chapter number 2. Stir means a little movement, कुछ भी movement होना, थोड़ा slow. So this task, you will just write the heading task J and I am just writing it to be done in grammar notebook. Okay,
आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. आपको ये जो छोटा सा पैराग्राफ है वो ग्रामर नोटबुक में लिखना है, बिकॉज व्हेन वी डू राइटिंग पोर्शन, व्हेन वी डू लाइक रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग समथिंग, तो वो हम ग्रामर में ही रखेंगे. इट इज़ रिलेटेड टू लिटरेचर, लेकिन आपका राइटिंग सेक्शन में जा रहा है, सो वील बी डूइंग इन ग्रामर नोटबुक. टास्क जी हमने हेडिंग लिखी दी है, सो डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट द पैराग्राफ. एंड यू कैन ऑल्सो राइट ऑन, अगर आपको कन्फ्यूजन ना रहे, बेस्ड ऑन पेज नंबर 15. इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अ पिक्चर कॉम्पोजिशन अगर आप देखें तो, बिकॉज यू हैव गिवन अ सीन लाइक दिस एंड वी आर गोइंग टू राइट अबाउट इट. सो आई एम गिविंग यू द कंटेंट. आप उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं. सो स्टार्ट विद चिल्ड्रन फ्रॉम different countries are flying kites. I will not be using numberings. I am just writing continuously. ठीक है, नंबर और नंबर लाइंस नहीं देंगे. 1 2 3 4 विल राइट कंटिन्यूसली. छोटा सा पैराग्राफ है, आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं, बट डोंट मेक इट टू लेंथी. चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर फ्लाइंग काइट्स, जैसे हम देख सकते हैं. ठीक है ना. नाउ अदर थिंग यू कैन सी इज, हर किसी के पास एक डिफरेंट शेप की काइट है, और यू कैन जस्ट राइट, आगे लिखेंगे हम, ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट काइट. किसी की भी सेम नहीं है, ईच वन हैज़ अ डिफरेंट काइट. ओके, नाउ you can see all of them are smiling and they are enjoying this moment. So we'll write they all are, all means सब, जितने भी लोगों की हम बात करें, they all are happy, or you can also write they all are enjoying this moment, or I am writing they all are very happy. Okay, you can keep it very simple. अब आप अपने बारे में भी बता सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा था विच काइट डू यू लाइक द मोस्ट. सो आई बेसिकली लाइक दिस ड्रैगन काइट. मे बी यू मस्ट हैव द लाइक दिस पिंक काइट विद टेल्स एंड अ क्लस्टर ऑफ काइट्स ज्वाइंड. किसी को ये पर्पल एंड पिंक भी पसंद होगी, सो यू हैव टू राइट योर चॉइस. सो आई एम राइटिंग आई लाइक द बिग. आप बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इसमें. ओके, सो इट्स अप टू यू ओनली. राइटिंग सेक्शन का यही एक फ्रीडम है, और ये अच्छी बात है कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं. बिग ग्रीन ड्रैगन काइट द मोस्ट, मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई. यू कैन ऐड ऑन योर रीजन्स ऑल्सो. ठीक है, सो आई विल बी एंडिंग अप सून, बिकॉज मुझे भी काइट फ्लाइंग बहुत पसंद है. सो आई एंड अप दिस पैराग्राफ विद आई ऑल्सो लाइक, और आई ऑल्सो लव, sorry, I also love flying kites. That's it. So this is about this scene. आप इसमें 1 or 2 sentences you can add, and you can make it more creative by adding different words, or that is completely your choice. Okay, so this is to be done. Now please don't forget it. मैम किस में करना है? To be done in grammar notebook. Grammar notebook में आप heading लिखेंगे date, and you will write task J based on page number 15, or you can also add on paragraph based on page number 15, and this is to be done. So end of the session, I am saying a goodbye from my side. See you soon. Bye bye.